عالم کے حکم پر وہ جہاز کی طرف بڑھی۔ اس میں داخل ہوتی وہ آہستہ سے قدم رکھنے لگی تھی کہ سامنے ہی اسے کئی سارے سیاہ فام نظر آئے جو وہاں پہرا دے رہے تھے۔ تو مطلب واقعی میں حور العین یہی تھی۔ کنگ سعیر کو دھوکہ دینے والا تھا، پر افسوس نہ اسے سعیر عالم نے موقع دیا نہ ہی پاک افواج نے۔ وہ جانتی تھی ابھی تک سعیر اس کا خاتمہ کر چکا ہوگا۔ ہے یو! وہ پیچھے بیلٹ میں ہتھیار چھپائے ایک سیاہ فام کو پکارنے لگی۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کون ہو اور یہاں کیسے پہنچی؟ وہ گرائے اس پر اور سب نے ہتھیار کا رخ اس کی طرف کر لیا۔ میں مسی، بولے تو مسی لیڈی باس۔ مجھے میرا شوہر نہیں پسند، اسی لیے میں اسے مروانا چاہتی ہوں۔ تم لوگوں میں سے کوئی انٹرسٹ رکھتا ہے اسے مارنے میں؟ وہ اپنی گھنی پلکیں جھپکا کر بولی۔ انہوں نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ مسی لیڈی باس فرام پاکستان؟ انہوں نے پہچاننے کی کوشش کی۔ اوہ گڈ جی، تسی تے مینوں جاندے ہو جی۔ ایلے گڈ ہو گیا جی۔ وہ منہ میں ببل ڈالتی ہوئی کھلکھلا کر بولی۔ بکواس بند کرو، یہاں کیوں آئی ہو؟ ایک جو گسیلا تھا وہ دھاڑ کر بولا۔ اوہ چلو کوئی بات نہیں، میں اس سے گزارا کر لوں گی، ویسے اب تو مر مٹا ہے، مجھے معلوم ہے اس کا۔ اس نے منہ بنا کر کہا اور ببل کا ایک غبارہ بنایا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ ہو کیا گیا تھا؟ ایسی بہکی باتیں وہ کیوں کر رہی تھی؟ سب کی توجہ اس کے غبارے کی جانب ہوئی، تب ہی ایک دم سے اس نے پیچھے سے پسٹل نکال کر اچانک ہی ان پر فائر کیا، اور پھر وہ رکی نہیں۔ ان کے وار کو ناکام کرتی وہ ایک دم ڈرم کی آڑ میں ہو گئی اور بیلٹ میں لگے ہتھیار سے گیس بم نکال کر اس نے ان کی طرف پھینکا کہ فضا ساری دھندلی سی ہو گئی۔ پکڑو اس چلاک لومڑی کو، وہ انگلش میں دھاڑتے ہوئے بولے۔ کمینے، تجھ میں کیڑے پڑے، کتے کی دم، میرے کو چلاک لومڑی بولا؟ وہ دانت پیس کر گرائی اور منہ پر واپس مفلر باندھ کر وہ آگے بڑھی۔ تبھی دھند میں سرسراتی ہوئی گولی اس کا بازو چیرتی گئی۔ وہ لب بھینچ کر بغیر آہ کیے، بغیر رکے اندر بڑھی، کیونکہ جانتی تھی کچھ ہی دیر میں بم سے نکلتا یہ زہریلا گیس ان کی رگیں چیر چکا ہوگا، اور بعد میں ٹھیک 15 منٹس کے بعد پورا جہاز تباہ ہو جائے گا۔ میرا بچہ این! وہ اندر اسے ڈھونڈتی ہوئی چلائی۔ حور العین! اس نے دھاڑ ماری۔ کون ہو؟ پیچھے سے دھاڑ گونجی۔ اس نے مڑ کر سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ تیری موت! کہنے کے ساتھ ہی اس نے کلا بازی مار کر بوٹ میں مقید پاؤں اس کے سینے پر مارا اور اس کے اٹھنے سے پہلے ہی خود اٹھتی اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے اوپر پسٹل تان گئی۔ بیسٹ کی بیوی کہاں ہے؟ وہ چلائی۔ آپ کون؟ پیچھے سہمی سی آواز آئی۔ مسکان نے پلٹ کر دیکھا تو خون آلود کوٹ پہنے ڈاکٹرز تھیں۔ حور العین کہاں ہے؟ اس کا ابھی پوچھنا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک دم اس کی گردن کو اس سیاہ فام نے دبوچ لیا۔ کون ہو بتاؤ؟ وہ گرایا۔ مسکان نے نظریں اس کے بھاری ہاتھ پر ڈالیں۔ اس کی اتنی ہمت کہ وہ اسے چھو رہا تھا۔ پہلے لڑنا تو سیکھ کتے! پوری قوت سے اس نے اپنا سر اس کے منہ پر مارا کہ وہ بلبلا اٹھا۔ وہ ایک دم جھک کر اس کی ٹانگ کو آگے کھینچنے لگی کہ پیچھے وہ دھڑام سے گرا۔ ایک دم ہی اس نے گھومتے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر پسٹل نکال کر اس کے دماغ کا نشانہ لیا۔ بیسٹ کو تو بغیر جانے پہچان جاتے ہو، میرے کو ہمیشہ تعارف کروانا پڑتا ہے۔ میں اس کی ساس۔ ٹھا کے ساتھ دوسرا فائر اس کی کھلی آنکھ میں کرتی ان ڈاکٹرز کی طرف پلٹی۔ کہاں ہے این؟ ہمارے پیچھے آئیں، وہ بولتی اندر بڑھی۔ مسکان بھی تیز قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی اور وہاں پہنچی جہاں وہ آرام سے سوئی ہوئی تھی۔ این میرا بچہ! مسکان بھاگتی اس کے پاس بیڈ پر پہنچی اور اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس کا گال تھپ تھپایا۔ آج ان کی وجہ سے ہمیں معلوم پڑا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے اور وہی دو جہان کا مالک ہے۔ ان کی وجہ سے ہم میں طاقت آئی، ہم نے اسلام کو جانا ہے، اس کے رب کو جانا ہے کہ وہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، نہ ہی اپنے پیاروں کو اکیلا کرتا ہے۔ دونوں نم آنکھوں سے مسکان کو دیکھتی بولی، بے شک میرا مالک کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ مسکرائی اور حور العین کے گالوں پر بوسے دیتی بھیگی آنکھوں سے اسے باہوں میں بھر کر سیدھی ہوئی۔ جلدی نکلو، جہاز بلاسٹ ہونے والا ہے، وہ کہتی ہوئی آگے بڑھی اور وہ ڈاکٹرز نم آنکھوں سے وہاں پڑی ڈاکٹر کو دیکھتی اس کے پیچھے بھاگی، ان مردہ درندوں کے اوپر لات رکھ کر۔
सांस मत लेना और सीधा मेरे पीछे आओ। बाहर आती वहां फैली गैस देखकर वो बोली। उसे हुरुल ऐन की फिक्र होने लगी कि ये सांसें ना ले ले इस जहर में। रुको! एकदम से अचानक सामने पहाड़ जैसा वजूद खड़ा होकर धाड़ा। डॉक्टर्स मुस्कान के पीछे हो गई। लड़की हमारे हवाले करो। उसने धाड़ कर मुस्कान की तरफ कदम उठाए। वो हरासा अपनी बाहों में ऐन को देखती नफी करती चली गई। बकवास बंद करो, रास्ते से हटो। बॉम्ब ब्लास्ट होने में चंद मिनट्स ही रहे थे और उसे यहां से निकलना था ऐन को लेकर हर हाल में। तुम दोनों जाओ, सीधे यहां से निकलो। वो खौफजदा खड़ी डॉक्टर से बोली और उस स्याह देव को देखने लगी जो उसे खून आलूदा नजरों से देख रहा था, जिसने सबको बेहोश कर दिया था। पर आप और ये, वो हरासा दिखने लगी। तुम दोनों जाओ, निकलो, उसने गुर्रा कर कहा। वो रोती सर हिलाती वहां से भागी। उस स्याह फॉर्म को हुरुल ऐन से मतलब था, इसीलिए उनके पीछे नहीं भागा बल्कि मुस्कान की तरफ कदम बढ़ाए। धुंध छट गई और फिजा में बॉम्ब के सेकंड्स चलने लगे। मखसूस बॉम्ब की आवाज पर वो स्याह फॉर्म मुस्कुराया। या अल्लाह, अब तक जितनी मदद की, थोड़ी और प्लीज। वो हुरुल ऐन को देखती उसे सीने में भींच कर बोली, हटो सामने से वरना जान से मार दूंगी कुत्ते। वो मौत को करीब आते देखती आपे से बाहर होती चिल्लाई, जाओ। तभी ही फिजा में मखसूस जानी पहचानी आवाज आई। मुस्कान ने चौंक कर सामने देखा। सईर! मुस्कान उसे देखती खुश हुई। निकलो यहां से, वो फिर से बोला और उस स्याह फार्म को देखने लगा। सईर, तुम्हारी हालत! वो उसकी हालत देखकर चीखी। जाओ! वो गुर्रा कर बोला कि उसकी रूह तक कांप गई। तुम चलो, उसे लेकर जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। वो रोती हुई हूर को उसके हवाले करने लगी। सईर ने चौंक कर उसकी बाहों में सोई हुई हूर को देखा। उसकी धुंधली आंखों में उसका चेहरा लहराया। वो मबहूत सा देखने लगा। शहजादी है, वो बुड़बुड़ाया। उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर छूना चाहता था, पर अपने हाथ में खंजर तो दूसरे में किंग का सर देखकर वो साकित सा रह गया। दूसरे ही पल एक गहरा सांस भरकर आंसुओं का गोला हलक से नीचे उतारा। इससे कहना कोई शहजादा नहीं था, उसे उजालों की सैर करवाना। मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूं, अब जाओ। वो किंग का सर फेंक कर मुस्कान का बाजू पकड़ता उसे बाहर की तरफ धकेलता हुआ बोला, मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। वो चिल्लाई, क्या अपने सईद का एक आखिरी हुक्म नहीं मानोगी? खून के साथ ही आंसू टूटकर उसकी पलकों से गिरा था। मुस्कान ने रोते हुए नफी में सर हिलाया कि सईद का दिमाग घूम गया। जाओ! वो पूरी कुव्वत से धाड़ा कि मुस्कान की रूह तक कांप गई। मजबूर होकर उसे वहां से भागना पड़ा उसकी शहजादी को बचाने के लिए। वो कहीं नहीं जाएगी। स्याह फार्म सईद को देखता रोती हुई उसे देखती जाती मुस्कान की तरफ लपका था कि उसी पल सईद ने उसकी गर्दन में पीछे से बाजू डालते उसे जकड़ लिया, जबकि उसकी धुंधली नूर से बेनूर होती आंखें उसे सामने ओझल होते मंजर को दिखा रही थीं। नजरें उसके लटके हुए हाथ पर टिकी थीं, तो कभी उस बेटी की पुश्त पर जाती जो जाते हुए उस पर इतना बड़ा एहसान किए जा रही थी। उसने अपनी शहजादी की हिफाजत के लिए उसे चुना था और आज वो इसे निभा गई थी। आलिम की शहजादियां। वो हंसा और फड़फड़ाते हुए स्याह फार्म की गर्दन पर दूसरे हाथ से आहिस्ता से खंजर घुमाया। कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम सब पाकिस्तान का, उसकी सरगोशी फिजा में गूंजी। वो जरकान को पकड़े बांध कर वहां से निकले ही थे कि उन्हें सामने ही मुस्कान आती दिखाई दी और उसके बाजुओं में हुरुल ऐन। सईद कहाँ है? हमें यहां से निकलना होगा, जल्दी। आरिफ उसे रोता हुआ देखकर भागता हुआ उसके पास आया और उससे हुरुल ऐन को ले लिया। किंग कहाँ है? उसे सईद आलिम लेकर गया है ना? कर्नल ने गुस्से से पूछा। सब ने हैरत से मुस्कान को देखा। किंग नहीं रहा, वो लड़खड़ाती हुई जबान में बोली। ओह शिट! कर्नल गुस्से से धड़ा। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, इसराइल अफवाज के पहुंचने से पहले। ब्रिगेडियर ने बरवक्त मामला संभाला। पर सईद कहाँ है मुस्कान? बुरहान खौफजदा होकर बोला।
مسکان نے لب کچل کر اسے دیکھا اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسک اٹھی۔ میسنی؟ نہیں۔ عارب کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ خوف اس کے گرد پھیل گیا جبکہ آلف، شہریار سب ساکت کھڑے روتی ہوئی مسکان کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے پیچھے ہی وہ دونوں ڈاکٹرز موجود تھیں جن کے آنسو ترا تر بہہ رہے تھے۔ نکلو یہاں سے بس، اس نے جو کیا خود کیا، ہم پر ذرا یقین نہیں رکھا، اس کا انجام یہی ہونا تھا، کرنل نے غصے سے کہتے وہاں سے قدم آگے بڑھائے۔ ہوا کیا؟ مسکان بتاؤ مجھے، وہ جہازوں کی طرف بھاگتے ہوئے افواج کو دیکھتے بولے۔ وہ ہمیں بچانے کے لیے خود اس جہاز میں آ گیا جہاں میں نے ان کے حیوانوں کے لیے بم پھینکا تھا۔ اس نے مجھے زبردستی وہاں سے نکال دیا اور خود پیچھے رہ گیا، وہ روتی ہوئی بولی۔ شہریار، آلف نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جہاز بلاسٹ نہیں ہوا تھا؟ برہان نے ایک دم اس کے بازو کو پکڑ کر جھٹکا دیتے پوچھا۔ نہیں، ہم وہاں سے نکل آئے پر اس کی حالت بہت خراب تھی، وہ پور کٹا ہوا تھا، اس کے سینے، سر، منہ، آنکھ، کانوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر اور دوسرے ہاتھ میں کنگ کا سر تھا اور اس نے مجھے وہاں سے بھیج کر اس سیاہ فام کی گردن دبوچ لی جبکہ پیچھے بم کے چند سیکنڈز ہی بچے تھے۔ ہمیں وہاں سے نکال دیا، وہ سسکتی ہوئی بتانے لگی۔ نکلو یہاں سے جلدی، بریگیڈیئر اور کرنل نے انہیں حکم دیا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ تمہیں دھماکے کی آواز آئی تھی؟ عارب نے پوچھ کر لب بھینچے۔ سب نے ایک آخری امید سے مسکان کو دیکھا۔ ہاں، جب ہم محل کی چھت پر پہنچے تو پیچھے دھماکہ ہوا تھا۔ اس کی سرگوشی والی آواز ساروں کی امیدوں کو نوچ گئی۔ عارب نے بھیگی آنکھوں سے اپنے بازوؤں میں موجود سوئی ہوئی حور العین کو دیکھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میسی؟ میں اس کی بہن کو کیا جواب دوں گا؟ وہ اذیت سے پاگل ہوتا گرایا۔ باقی سب ساکت سے تھے جبکہ کچھ شہید اٹھا کر جہازوں کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ چلو۔ نیکسٹ سین۔ الحمدللہ بچہ ٹھیک ہے، لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ حور العین کا ڈاکٹر روم سے باہر نکلتا برہان، مسکان اور ایزل کو دیکھتے بولا۔ پاکستان پہنچتے ہی انہوں نے سب سے پہلا کام یہی کیا، حور العین کو ہاسپٹل لے کر آئے تھے جبکہ کراچی میں سناٹا چھایا ہوا تھا دہشت گردوں کی موت پر۔ اس جنگ سے سب ناواقف تھے کہ یہ جنگ سید عالم ایک بیسٹ کی تھی اور خاتمہ بھی اس نے ہی کیا تھا۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بیسٹ ہی عالم ہے کیونکہ سینئر آفیسرز نے سعید کی بھیجی گئی وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کسی کو معلوم ہو کہ عالم نہیں رہا یا بیسٹ کا اینڈ ہو چکا ہے۔ وہ اس وحشت کو قائم رکھنا چاہتے تھے دشمنوں کے لیے کہ بیسٹ کبھی نہیں مر سکتا، وہ زندہ ہے اور رہے گا۔ انہیں کنگ کے بدلے زرکان مل گیا تھا، اسرائیلی دہشت گرد۔ البتہ کنگ اور زمان کے خاتمے سے وہ کافی پرسکون تھے، وہیں عالم کے لیے افسوس بھی تھا۔ آلف، شیر دونوں آن ڈیوٹی تھے ابھی، ان کا مشن ابھی مکمل نہیں ہوا تھا جبکہ برہان، مسکان، ایزل سب کچھ ہار کر لوٹ آئے تھے۔ کئی آفیسرز شہیدوں کو سلامی پیش کر رہے تھے جو دشمنوں کے ساتھ لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ برہان نے تو یہاں سے جانے سے پہلے ہی سن کر ڈیلیٹ کر دیا تھا کہ بیسٹ کا تجسس کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ ہی وہ ہونے دیں گے۔ انہوں نے اپنا ساتھ دیا تھا بیسٹ کو، وہ کبھی بیسٹ کو نہیں ختم کر سکتے۔ ہاں، وہ خود ان سے ضرور الگ ہو گیا تھا۔ میرا بچہ حور العین کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ بتائیں، اس کے بارے میں بتائیں پلیز۔ مسکان تڑپ کر ڈاکٹر کے پاس آتی بھیگی آواز میں بولی۔ سوری ٹو سے، پر وہ کافی کچھ بھول چکی ہیں اپنے ماضی کے بارے میں۔ انہیں بہت بڑا صدمہ دیا گیا ہے۔ وہ پہلے ہی ایک مریضہ تھیں، سب جانتے ہیں، پھر بھی ان پر پھر سے دماغی اٹیک ہوا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ آپ مہربانی کریں سید عالم کو کال کر کے بلائیں، ہمیں ان سے تفصیل جاننی ہے۔ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب کسی کی کیئر کر نہیں سکتے تو ذمہ داری لیتے کیوں ہیں؟ ڈاکٹر غصے میں آ گیا جسے مسکان خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ! تم جانتے ہو، تم کیا جانتے ہو میرے عالم کے بارے میں؟ گھٹیا انسان! وہ اس کی کیئر نہیں کرتا تو تیرا باپ آ کر کرتا ہے۔ وہ ہذیانی ہو کر
चीखती आपे से बाहर होकर डॉक्टर के कॉलर को जकड़े उसके चेहरे पर मुक्के मारने शुरू कर दिए कि वहां खड़े बुरहान और इजल बौखला गए। What the hell are you doing, मुस्कान? बुरहान गुस्से से धाड़ता हुआ उसे बाजू से जकड़कर अपने शिकंजे में कैद कर गया। छोड़ो मुझे तुम, इसका आज खून कर दूंगी, ये मेरे आलिम को लापरवाह कह रहा है, छोड़ो जरा। वो सूजी आंखों बिखरे बालों से बिल्कुल पागल होती बुरहान के मजबूत शिकंजे में फड़फड़ाई, जबकि उसकी चीखों धाड़ों पर जहां डॉक्टर वहां से खौफजदा होकर भागा था, वहीं दूर दूर से उसे हैरत शुश्तर लोग देख रहे थे। बस कर दो, क्या करना चाहती हो? तमाशा लगा रही हो? यही चाहती हो उसका इलाज कोई ना करे? इजल सामने आते उसके दोनों हाथ पकड़कर गुर्राते हुए बोला। मुस्कान ने एकदम साकित होकर उसके शहद रंग सी सुर्ख आंखों में देखा, जो छुप छुप कर रोते लहू हो गई थी। तमाशा ना बनाऊं? आलिम के बारे में किसी ने उफ भी कहा तो लहू बहा दूंगी, रिमेंबर। वो गुर्राई और झटके से इजल से अपना हाथ छुड़वाकर बुरहान से दूर हुई। मुस्कान, उसकी हालत देखते बुरहान तड़प कर उसकी तरफ बढ़ा, पर मुस्कान ने हाथ से उसे वहीं रोक दिया। प्लीज, वो ना लापरवाह था ना ही बुरा, वो जो है मेरी नजरों में है वही रहेगा, उसने सिसकते हुए कहा और रोती हुई नीचे बैठती चली गई। मैं घर देखता हूं, सब बिजी हैं, नूर और सिमी को देखकर आता हूं, उसे यकीन दिलाऊं कि भीगी आवाज में आरिफ कहता बगैर किसी की तरफ देखे लंबे लंबे डग भरता वहां से निकलता चला गया, बल्कि अपनी जान अजीज बहन को देखना गवारा नहीं किया कि कहीं उसका जब्त न टूट जाए। मुझसे नहीं होगा उसका इलाज। वो होश में आकर पूछेगी मुझसे कि आलिम कहाँ है, उसका शहजादा कहाँ है, तब मैं क्या कहूंगी? उसने मुझसे कहा था कि वो जब देखेगी तो सबसे पहले अपने शहजादे का चेहरा देखेगी। वो बहुत जिद्दी है, मैं उसे मना नहीं पाऊंगी। बुरहान, प्लीज शूट मी, मार दो मुझे, मेरी अजियत खत्म कर दो, प्लीज प्लीज। वो हिचकियां भर कर कहती एकदम उठकर उसके गिरेबान से पकड़कर चीखी। होश में आओ मुस्कान, क्या कर रही हो? हमें उसका इलाज करवाना है, उसे रोशनी देनी है ताकि वो आगे अपनी जिंदगी गुजार सके। हमें उसे मजबूत करना है, फिर चाहे वो कभी अपने माजी को ना याद करे। उसके सामने एक खूबसूरत माजी रखना है जिसमें उसका शहजादा एक बहुत हसास दिल और बहादुर जांबाज था, जिसने मुल्क के दुश्मनों को खत्म करने के लिए, जिसने अपनी शहजादी को बचाने के लिए, जिसने अपनी बहन का बदला लेते, जिसने एक बेटी को बचाते खुद को कुर्बान कर दिया। हम दोनों मिलकर उसे बताएंगे कि वो कितना प्यारा शख्स था, बहुत मासूम था। वो आलिम था, सबका दर्द महसूस करने वाला आलिम, जो अपनी शहजादियों को अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता था। वो अपनी शहजादियों से इश्क करता था जिसका कोई हिसाब नहीं था। हम इसे बताएंगे मिसी कि एक शहजादा था, तन्हा, टूटा हुआ, पर मजबूत पहाड़ से ज्यादा। रात का पहर था, सितारे के बीच चमकते चांद की मौजूदगी में बीच रास्ते तन्हा गुजरते अचानक उसे एक हूर मिली थी। एक शहजादी से उसका टकराव हुआ था जो अकेली तन्हा रोती हुई मौत की दुआएं मांग रही थी। वो शहजादा उसे देखकर रुक गया, उसकी मंजिल मिल गई। वो रुक गया और उसके करीब आकर उससे बातें करने लगा। उसके आंसू पूछे, उसका दर्द अपने सीने में महसूस किया, उसे छुपा दिया एक पहाड़ के पीछे जहां सिर्फ उसका ठिकाना था, उसका साया था और वो था। और फिर वहां उसकी शहजादी को भी लेकर आया, दुनिया के तीर तंज पत्थरों से बचाकर। अंधेरे में रहकर उसे उजालों का सैर करवाई। एक खूबसूरत एहसास रिश्ते से कैद कर लिया उसे मोहब्बत का बासी बना दिया। उस रोती सिसकती छुपी शहजादी को अपनी सल्तनत की शहजादी बनाकर बिठाया। फिर उसकी आंखें नम हो गईं, आवाज भारी हो गई और बोलना नहायत ही मुश्किल हो गया कि उसे रुकना पड़ा और आंखें मीच कर सर बुलंद करते हॉस्पिटल की फिजा में गहरे सांस लेने पड़े। फिर वो चला गया। अचानक ही उसके गिर्द सारी वहशतों को मिटाकर एक सिसकता हुआ एहसास सौंप गया। वो कह कर गया कि वो सब ख्वाब है। उसे बता दिया शहजादे नहीं होते, अगर होते भी हैं तो दुनिया नहीं जीने देती उन्हें। क्यों? वो क्यों? मैं क्यों नहीं? उस पर मैं कुर्बान क्यों नहीं? वो क्यों? एसपी, कहाँ गई तुम्हारी पावर्स? कहाँ है तुम्हारी पावर्स? इस्तेमाल करो उन्हें। भीख मांगकर खुदा से उसे लाओ, अपनी हुरुल ऐन के लिए लाओ, पर प्लीज ले आओ उसे। हम तो हैं ही गुनाहगार, कातिल शख्स,
पर तुम लोग तो हक पर मारते हो। जाओ उससे पूछो कि कैसे वो उसे छीन सकता है जिसने कभी खुद का सोचा नहीं, और जब सोचने का वक्त आया तो उससे वो वक्त छीन लिया। वो अपना चेहरा उसके सीने में छुपाए फूट फूट कर रोती हुई बोल रही थी। रात के पहर वो दोनों इस वक्त अकेले कॉरिडोर में खड़े थे, जबकि लोग दूर से उस लड़की की बिखरी हालत देख रहे थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो, जैसे कोई बहुत प्यारा बिछड़ गया हो। उससे कहो बुरहान, सब झूठ कर दे, वो आ जाए, ऐसे जैसे कोई रब का करिश्मा हुआ हो। वो हाफिज कुरान था, उसे तो अभी अपनी शहजादी को कुरान पढ़ाना था। वो कैसे जा सकता है एक सिसकती रोती हुई बहन को छोड़कर? क्यों उनके इश्क की इतनी थोड़ी जिंदगी थी? क्यों वो बार बार मिलकर बिछड़ते जाते हैं? ये कैसा आलिम वहशत है? ये कैसा इंसाफ है? कोई बताए मुझे। मेरे वजूद के 1000 टुकड़े करके वो चला गया, मेरी हुरुल ऐन को वो तन्हा कर गया। एक आलिम को तन्हा कर दिया जिसने तो अभी इस दुनिया में आंख भी नहीं खोली। कल जब वो पूछेगा बाबा का, तो क्या उसे भी यही कहूंगी कि बाबा एक शहजादा था और शहजादा सिर्फ कहानियों में होते हैं, हकीकत में कहीं उनका वजूद नहीं? बताओ मुझे, क्या वो मान लेगा मेरी बात? वो सिसकती हिचकियां खाते वजूद के साथ आहिस्ता से उसके कदमों में बैठती चली गई, जबकि उसे अपने बाजू की कोई परवाह नहीं थी जिसे गोली चीरती हुई गुजर गई थी। उसे वहां दर्द कहाँ महसूस हो रहा था जितना उस अपने बाप के बिछड़ने का महसूस हो रहा था। मैं यतीम नहीं होना चाहती बुरहान, मैं नहीं फिर से लावारिस होना चाहती। मेरा वारिस है, उसने कहा था, वो हमारा सब कुछ है। उसके होते कभी हम दोनों खुद को अकेला ना समझें, फिर कैसे आज वो हमें अकेला कर गया? बुरहान। बुरहान उसकी सरगोशियां सुनता घुटनों के बल उसके सामने बैठा। सब ठीक हो जाएगा जाने बुरहान, अल्लाह पर यकीन करो, वो जो करता है सबकी बेहतरी के लिए करता है। उसे आहिस्ता से खुद में समेट कर वो उसके वजूद को खुद में छुपाने लगा, जबकि दरवाजे के उस पार वो छत को देखती मुस्कुरा रही थी। उसे मालूम पड़ा था वो प्रेग्नेंट है, उसका शहजादा है जिसका नाम आलिम है। आलिम? वो बुड़बुड़ाई और खिलखिला उठी। मम्मा की बात सच हो गई, मेरा शहजादा है। नूर, वो गंदे आदमी झूठ बोल रहे थे, मेरा शहजादा है आलिम। रूम के पास बैठे मुस्कान बुरहान ने चौंक कर उसकी खिलखिलाहट, उसकी आवाज सुनी। वो रोती नफी करती उठी और डोर के पास आकर विंडो से उसे हंसते मुस्कुराते शर्माते देखने लगी। आलिम जब आएगा तो मैं उसे कैसे देखूंगी? या अल्लाह, मुझे रोशनी दे दे, मुझे अपने शहजादे को देखना है। वो हाथ उठाकर दुआ करने लगी। आमीन। मुस्कान ने सरगोशी करते दरवाजे से पुश्त टिका दी। उसकी आवाज पर हूर ने चौंक कर उसकी तरफ चेहरा किया, जबकि सामने बुरहान खड़ा उसे पहली बार यूं बिखर कर रोते देखते हुए मोहब्बत से आंसू पूछ रहा था। मत रो मिसी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो मुझे रोते। उसका सर सीने से लगाए वो उसकी पीठ थपथपाने लगा और उसने खुद को सहारा देने के लिए उसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़ लिया। फिर तुम बताओ कैसे? अब मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊंगी? कैसे अपने बाप के आखिरी मोती को सीसा बनाकर उसके कानों में उंडेलूंगी? नूर, तुम हो? मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे आलिम के पास जाना है। वो अपने हाथों में लगी ड्रिप को महसूस करती चिढ़कर बोली, जबकि मुस्कान ने सख्ती से लब भींच लिए थे, ऐसे जैसे वो अपनी सांसें भी उस तक नहीं पहुंचाना चाहती थी। फिर ऐसा ना हो वो अपनी बेटी को खुद अजियत का जायका चखाए, उसके सियाह रात के जुगनू खुद नोच ले। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वो लाउंज में जैसे ही दाखिल हुआ तो सामने ही परी को देखकर एहतराम से बोला, वालेकुम सलाम। वो सब कहाँ हैं? परी कांपते हाथों से पानी के जग को मजबूती से पकड़ती उसकी भीगी सूजी आंखें देखकर खौफ से सुकड़ते दिल के साथ बोली, आ रही हैं। उसने थक कर कहते सोफे पर बगैर इजाजत के गिर गया। परी ने हैरत से उसे देखा, जिसके बूट खून आलूद थे, जबकि खुद वो सियाह लिबास में मलबूस था और ग्लव्स पहने हाथों को चेहरे पर रखकर सोफे की पुश्त से सर टिका दिया। आप ठीक हैं आरिफ भाई?
आरिब उसकी सोच का अंदाज़ा लगाता फौरन सीधा होकर बैठा। जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सिमी कैसी हैं और नूरुल ऐन? वो खुद को संभाल कर मुस्कुराता हुआ बोला, जिससे परी को थोड़ा बहुत हौसला मिला। जी सिमी को बहुत बुखार था, डॉक्टर ने उन्हें आराम की दवाई दे दी है, सुला दिया है, बाकी नूर का इलाज हो रहा है। वो दुपट्टा दुरुस्त करती जल्दी से बोली। आरिब ने चौंक कर सिमी को सुना था। क्यों, कैसे हुआ उन्हें बुखार? क्या वो ठीक है? वो एकदम खड़ा होता हुआ बौखला कर परेशान सा बोलता गया और सीढ़ियों की जानिब भागा, उस रूम की तरफ जहां वो उसे जायनमाज पर देख कर गया था आखिरी बार। परी ने अभी मुंह खोला ही था जबकि वो सीढ़ियां डबल फलांगता हुआ ऊपर पहुंच चुका था। उसे शर्मिंदगी सी होने लगी, पर वो हैरान भी थी। आखिर वो जवान मर्द रोया क्यों है? अल्लाह सबको अपने अमान में रखिएगा। उसने दिल में दुआ मांगते हुए कदम रूम की तरफ बढ़ा दिए कि सुबह तक शहरी भी पहुंच जाएंगे। दरवाज़ा धड़कते दिल के साथ खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो नजरें सीधा सामने बेड पर सोई हुई समिया के पुरनूर चेहरे पर रुकी, जो आंसुओं की रफ्तारी से भीगा हुआ था। वो चौंक गया जब नजरें उसकी आंखों के कोने पर गईं, जहां से सोते हुए भी उसके आंसू बहकर निकल रहे थे, जबकि चेहरा अजियत की एक दास्तान सुना रहा था। सिमी? वो तड़प कर आगे बढ़ा और चलता हुआ उसके बेड के पास घुटनों के बल बैठ गया। वो सोई हुई थी, पर फिर भी उसके लब हिल रहे थे और आंसू तेजी से बहकर गालों को भिगोए जा रहे थे। आरिब ने इस मंजर को गैर यकीनी से देखा। नाकाबिले यकीन था कि कोई कैसे बेहोशी में दवाओं के ज़ेरे असर आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने आलिम के लिए मजबूत हसार बना रहा है। वो गाफिल थी, दवाओं के ज़ेरे असर पड़ी थी, पर उसके लब, उसका दिल, उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। उसका वजूद गाफिल था, वो दवाओं की जंजीरों में कैद था, पर उसकी रूह आज़ाद थी, वो अपना फ़र्ज निभा रही थी। सिमी जी, उसने सरगोशी में पुकारा, पर ना ही उसमें कोई जुम्बिश आई, ना लब रुके, ना उन पर चलता विरद थमा। आंसुओं में तेजी आ गई थी, पर वो रुकी नहीं, ना ही उसका गला खुश्क हुआ था। अलबत्ता इस मंजर को देखते आरिब के रोंगटे जरूर खड़े हो गए थे कि क्या इश्क ये है? ये कैसा इश्क था बहन भाई का? क्या इश्क ऐसा भी होता है? किस कदर अनमोल रिश्ता था दोनों के बीच, कैसा पाकीज़ा इश्क था कि अजियत में एक था, तकलीफ दूसरे को हो रही थी। आरिब नीचे बैठा बेड पर सर टिकाकर खामोशी से उसे देखने लगा। उसकी मोहब्बत इतनी खूबसूरत है, वो किस कदर खुश नसीब है। जिस भाई के पीछे ऐसी बहनें हों, उन्हें कैसे दुश्मन खत्म कर सकते हैं? मिसी भी पागल है, भला सिमी की शहजादी को कुछ हो सकता है? जब उसकी शहजादी दुश्मनों के चुंगल से जैसे गई थी वैसे ही लौट आई, तो भला उसके शहजादे को क्या हो सकता है? वो मुस्कुराता कहता बेड पर सर टिकाकर बेआवाज रोने लगा। वो मेरा बाप है, या रब, उसे कुछ नहीं हो सकता। जितने बदसूरत हैवान दिखाए, फिर उनके बीच फरिश्ता दिखाकर कैसे छीन सकते हैं हमसे? वो आस्तीनों से आंखें पूछता वजू करने चला गया। अभी तहज्जुद का वक्त था, अभी उसके रब से बातें करने, फरियाद करने का वक्त था कि उनके वारिस को कुछ ना हो। उन सब की जिंदगी आलिम से है और आलिम को कुछ नहीं हो सकता। वो अपनी अर्जी लेकर उसके दर पर जा रहा था, जिसके लिए हर रोज रातों में तहज्जुद पढ़कर उसकी लंबी खुशहाली के लिए दुआएं मांगता था। फिर भला कैसे उनके बाप को कुछ हो सकता था? कुछ ही देर में वो उसी जाय नमाज पर खड़ा हो गया जिस पर समिया आलिम पढ़ते हुए बेहोश हो गई थी, और इस बेहोशी में भी उसके लबों पर कुरान पाक की तिलावत जारी थी, क्योंकि वो हाफिज़े कुरान थी, जिनकी रूह भी कुरान की तिलावत करती है। तुम इसे क्यों लाई हो? तुम्हें अंदाजा नहीं कि इसका इलाज होना है? आरिब ने भड़कते हुए उसका बाजू पकड़कर रुख अपनी तरफ करते हुए पूछा। मुझे मालूम है इसका इलाज होना है, पर दवाओं से नहीं, दुआओं से होगा। इसलिए ही मैं इसे लेकर आई हूं। आलिम भी तो अपनी मोहब्बत से इसका इलाज करता है।
वो अपना बाजू झटके से छुड़वा कर बोली, मिसी मिसी मुस्कान, तुम्हें क्या हो गया है? पागल बन गई हो? उसे इलाज की सख्त जरूरत है, वो मां बनने वाली है। हमारी जरा सी भी लापरवाही हमें मार देगी। वो जिद होकर गुस्सा जब्त करते हुए बोला, वेट, तुम्हें क्यों लगता है हम इसके मामले में लापरवाह होंगे? उसने गुस्से से पूछते, कहर भरी नजरों से देखते अबरू उचकाया। आरिफ ने गहरा सांस लेते लॉन में लगे फूलों को देखा। वो अपनी आंखों की नमी पीछे धकेलने लगा। क्योंकि हम आलिम की बराबरी नहीं कर सकते, हम उसका इतना ख्याल नहीं रख सकते मिसी जितना आलिम रखता है। तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें वहीं जाना है। बुरहान को तुम्हारी जरूरत है, उसकी बेटी को तुम्हारी जरूरत है। सिमी जी खुद इस काबिल नहीं रही हैं कि उन्हें ये बता सकें कि उनका भाई, खैर मैं ख्याल रख सकता हूं उसका, पर आलिम जितना नहीं। वो उसे अपने वजूद में छुपा कर महफूज रखता है। जब अचानक वो डर जाती है, कभी खौफजदा होकर उठती है, तो वो उसे यूं दिल से लगा रखता है जिस हिसार का मैं और तुम मुकाबला नहीं कर सकते। मैं अमचल नमकी नहीं बना सकता, क्योंकि उसने हमेशा सीक्रेट में बनाई थी अपनी शहजादी के लिए। आरिफ की बातों पर सुनहरी सुर्ख सूजी आंखों से मुस्कान उसे घूर रही थी, जबकि अपने लबों को सख्ती से काटने लगी, जिससे उसके मुंह में खून का जायका घुलने लगा। तुम ये नहीं कर सकते आरिफ, पर मैं कर सकती हूं। वो उसकी सब बातों को इग्नोर करती अंदर बढ़ गई। और हाँ, घर खाली पड़ा है, चलो। वो रुक कर उसकी पुश्त को देखती बोलती चली गई। उसके जाते ही आरिफ ने चेहरे पर हाथ फेरे। ऐसे ही चले, फिर नूरुल ऐन को यहां अकेला छोड़ दें? वो उसके पीछे आता हुआ बोला। मुस्कान के कदम थम गए और नजरें सामने बंद दरवाजे पर गई, जहां वो लम्हा लम्हा जिंदगी मौत का खेल खेल रही थी। ठीक है, तुम यहीं रुक जाओ, मैं ऐन और सिमी को लेकर जा रही हूं। वो सपाट लहजे में बोली। तुम्हें तरस नहीं आता मुस्कान, एक बहन को दूसरी बहन से दूर करते? वो जब से आई है कभी आलिम तो कभी नूर कह रही है। ऐसे में तुम उसे यूं जुदा करके ले जाओगी? खौफ नहीं आता तुम्हें? वो सामने आकर उसकी आंखों में देखता बोला, नहीं, मैं इस मामले में बहुत पत्थर दिल हूं। मैं अपने रिश्तों के लिए किसी हद तक भी जा सकती हूं। मेरी सारी दुआएं हैं नूर के लिए। मैं मानती हूं उन्हें अलग करके अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं अपनी बच्ची को डिप्रेशन में नहीं छोड़ सकती। मैं उसे हंसाना चाहती हूं, और यहां रहकर तो वो बिल्कुल नहीं हंस सकती। मुझे एक बार फिर माफ कर दो कि तुम्हारी बहन के सारे एहसासात आलिम और उसकी ऐन से जुड़े हैं। बाकी सब अलग हैं और वो कभी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर समिया को आलिम से इश्क है तो मुझे अपने आलिम और अपनी बच्ची से है। अब ये मत पूछना मुझे उससे इश्क कब हुआ। मैंने जब इन आंखों से पहली बार उसे सीढ़ियां उतरते देखा था किंग के महल में। आलिम का मालूम नहीं, पर मैं तब से उस शहजादी से इश्क करती हूँ। उसकी खुशी, दुख, तकलीफ सब कुछ मुझे खुद में महसूस होती है। वो कहती बगैर रुके चली गई। आरिफ का दिल किया खुद अपने ही बाल नोच ले। वो अपनी बहन को खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो किस रास्ते की मुसाफिर है। तुम ठीक हो? शेर आलिफ के पास बैठता मुस्कुरा कर बोला। हाँ, अब ठीक हूं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। गुड, फिर अब क्या करोगे? पानी का ग्लास लबों से लगाते उसने दूसरा आलिफ के सामने किया, जिसने मुस्कुराते हुए थाम लिया। कुछ नहीं यार, घर जाऊंगा नूर के पास। वो हंसकर बोला। हूर के लिए क्या सोचा है? कुछ देर बाद उसने कहा। आलिफ ने उसकी तरफ देखते पानी का घूंट हलक से उतारा। वो काफी साबिर है, मुझे उम्मीद है कभी नहीं टूटेगी, बल्कि हौसला रखेगी। मुस्कान है, आरिफ है, सिमी है, सब उसे हौसला देंगे तो वो संभल जाएगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसका कंधा थपथपा कर वो हैंग हुए कपड़े उठाकर चेंज करने जाने लगा। यहां से कब निकलना है? बाथरूम के दरवाजे पर रुकते हुए उसने पूछा। मालूम नहीं, अभी मीटिंग है जिसमें हमारी शिरकत जरूरी है। यू नो, जरकान, किंग की मौत, खास करके आलिम की। उसकी बात सुनते समझते आलिफ सर हिलाकर बाथरूम में बंद हो गया और शहरयार गहरा सांस भरते वहां पड़े बेड पर लेट गया।
जमाल अंकल के रेस्टोरेंट का क्या करना है तुम लोगों ने? आलिफ के बाहर आने पर उसने सोचते हुए पूछा। आलिफ ने चौंक कर देखा। बताओ तो यार, फिर मेरे दिमाग में एक मशवरा है। करना क्या है? नूर या हूर से पूछना है, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे भाई को तो और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। उन्होंने अब्बू से भी ले लिए थे पेपर्स। अच्छा, फिर यार मेरी मान, हूर के लिए उसे वापस से ओपन करें और उसे उसमें बिजी कर दें। वो उठ बैठा। आलिफ ने हैरत से उसे देखा। होश में हो? उसकी ये कंडीशन है रेस्टोरेंट संभाले? पता है कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। भड़क क्यों रहे हो? मिसी फिर किस काम आएगी? उसे साथ लगाओ, बहुत खूबसूरत वक्त गुजर जाएगा। वो मायनी खेजी से मुस्कुराता हुआ बोला। आलिफ सोच में पड़ गया। मैं अभी तो कुछ कह नहीं सकता, यहां से जाते मशवरा करूंगा आरिब और मिसी से। ब्रश बालों में करते हुए उसने सोच कर बताया। गुड, सोचना जरूर, बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। वो कहता खुद फ्रेश होने चला गया। वो इस वक्त हेड क्वार्टर में मौजूद थे। कुछ देर में उनके लिए एक लड़का खाने की ट्रे लेकर आ गया, जिसे थाम कर आलिफ ने टेबल पर रखा और बैठकर लब भींचे हूर और अपनी बोनी के बारे में सोचने लगा कि उस पर क्या बीत रही होगी, वो कैसे काट रही होगी वो अजियत भरे लम्हात। उसके दिल में तड़प मजीद बढ़ गई और दिल चाहा उड़कर उसके पास पहुंचकर उसे खुद में छुपा दे, और अगर वो होश में ना हो तो अपने शिद्दत भरे तड़प ज़दा लम्ब से उसकी बेहोशी को मदहोशी में बदल दे। उसे सोच कर ही उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। तो कहीं अजियत भरे लम्हात नजरों में घूमे। वो सर झटक कर एक गहरा सांस भरता उठ खड़ा हुआ और आकर खिड़की के पास रुकते गहरे सांस भरे। मैं कैसे तुम्हें हौसला दूंगा हूर? तुम अपने नसीब में इतनी तकलीफें क्यों लिखवा कर आई हो? क्या तुम बर्दाश्त कर सकोगी कि तुम्हें... आजा यार, खाना खा ले, वरना ऐसा ना हो तुम्हारी शहीद बॉडी लेकर जानी पड़े मिसेस बोनी के पास। उसे जख्मों की जंजीरों से खींच कर निकालते शहरयार ने उसका बाजू पकड़ते हुए चेयर पर धकेला। वो हल्का सा मुस्कुराता हुआ सीधा होकर बैठा। अब क्या चाहता है, नवाला बनाकर तेरे मुंह में डालूं? उसे सोचों में देखते शेर ने दांत पीसते हुए कहा। आलिफ ने पहले नासमझी से देखा, फिर बात को समझते हंस पड़ा। नहीं भाई, ये तू अपनी बेगम के साथ किया कर, अच्छा लगेगा। उसने हाथ उठाकर कहा। शहरयार कह कहा लगा उठा। उसके पास होता हूं तो वो छुपने के बहाने ढूंढती है, उसने मायूस होकर कहा। आलिफ चौंक गया। क्यों? नवाला मुंह में रखते उसने उसके चेहरे को देखा। बस यार क्या बताऊं, उससे मेरी अच्छाई बर्दाश्त ही नहीं होती। हालांकि मैं उसके मामले में काफी शरीफ साबित हुआ हूं, इतना शरीफ हूं कि आरिब मेरा शागिर्द रह चुका है। उसने कहते नफी में सर हिलाते पानी का ग्लास मुंह से लगाया। आलिफ ने आंखें सुकेड़ कर उसकी आंखों में देखा, जहां शरारत खूब थी। वो हंस पड़ा। हाँ भाई, तुम जैसे मुंह बोले शराफत के भाई कुछ ज्यादा ही मुल्क में बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है नेक्स्ट मिशन सर हमें शराफत के पीछे ही लगने का देंगे, जिसने इतने सारे नौजवानों को बेगैरती का चेला बना दिया है। वो कहता उठा। शहरयार उसका मुंह तकता रह गया और आलिफ मुस्कुराहट छुपाए पीठ फेरे खड़ा हो गया। यार, मैं तो तुम्हें काफी मासूम समझता था, शक्ल से इतने मासूम लगते हो, उसने सदमे में कहा। हाँ, सबको यही गलतफहमी है। इसी गलतफहमी ने तो मेरी बोनी को भटका दिया। मैंने तौबा कर ली है मासूमियत से। साली ने घर उजाड़ दिया। अब तो जो हूं वही जाऊंगा अपनी बोनी के पास। उसने अपने इरादों से आगाही दी। शहरयार खामोश हो गया, क्योंकि वो जानता था इस मजाक के पीछे भी बहुत अजियत छुपी थी। क्योंकि माँ बाप को खोना कोई कम मौत नहीं। जीते जी तो मार देते हैं जाते हुए, और मौत ऐसी कि सिसकी भी ना लेने दे। फिर जिस तरह उसके माँ बाप की मौत हुई, उन दोनों भाइयों के हौसले पर सलाम था कि किस तरह वो बुलंद हौसले के मालिक थे। मेरा बच्चा, तुमसे कुछ कहना है। सोफे पर बैठी वो हाथों में मौजूद सीप के मोतियों से खेलती हूरुल ऐन के पास आती नीचे सामने बैठी। हाँ कहो। हूर ने नजरें उठाकर सामने देखा। मुस्कान ने उसकी आंखों में झांकते हुए उसकी गोद में सर रख दिया। हूर मुस्कुराई
और अपना हाथ उसके बालों पर फेरा। क्या हुआ मीसनी, तुम ठीक हो? वो उसकी गाल पर हाथ रखती नमी महसूस करके परेशान हुई। वापस चलें? वो भराई आवाज में बोली। कहाँ? आलिम को तो आने दें, वो ले चलेंगे हमें। तुमने ही तो कहा था वो आ रहे हैं यहाँ, हुरुल ऐन ने परेशान होते कहा। हाँ ना मेरी जान, वहीं चलते हैं जहां वो रहता है। वो उसका नाजुक हाथ लबों से लगाती बोली। अच्छा, वो वहां है तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? चले ना उनके पास। वो बेचैन होकर उठ खड़ी हुई। उसके उठते ही उसकी गोद में मौजूद तमाम सीप के मोती बिखर कर कालीन पर फैल गए। ओह मीसनी, ये परी के हैं, उसने मुझे रखने के लिए दिए थे और मैंने सारे ही फेंक दिए। वो हंसकर शर्मिंदा होती बोली। कोई बात नहीं, मैं समेट लूंगी। वो उसके सामने आती उसके चेहरे से बाल संवार कर हाथों में चेहरा भरते हुए बोली और झुककर उसकी दोनों आंखें चूमती माथे पर लब रखते उसे खुद में समेट लिया। अमचल नमकी खाओगी? उसकी पीठ सहलाते हुए उसने पूछा। वो क्या होता है? हूर ने हैरत से पूछा। ऐसा मत कहो, आलिम नाराज होगा। वो तुम्हारे लिए खास बनाता है, किसी को नहीं बताता। मुझसे भी गलती हो गई थी, एक दफा बना ली थी, पर अब मैं ये गलती बार बार करूंगी। वो सब कुछ करूंगी जिससे उसे गुस्सा आता है, और उसी गुस्से में वो जरूर वापस आएगा तुम्हें मुझसे बचाने। वो दिल में बोलती उसके गाल चूम कर उसे सुर्ख करती नम आंखों से हंस पड़ी। चलो, मैं जब तक सिमी जी को तैयार होने का कहती हूँ, तुम यहाँ बैठो। वो उसे बेड पर एहतियात से बिठाकर सारे मोती नीचे से समेटती हुई रूम से निकल गई। वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? मीसनी तो कह रही है वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, फिर यहाँ से लेने क्यों नहीं आए? क्या वो काफी मगरूर हैं? या मैं अंधी हूँ इसलिए मुझे पसंद नहीं करते होंगे? कहीं मीसनी मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं, ऐसे तो नहीं आलिम, ये मैं क्या सोच रही हूँ? शहजादे ऐसे थोड़ी होते हैं, वो तो अपनी शहजादी को बहुत प्यार करते हैं। देखना, जरूर उन्हें कोई काम होगा, और जब मैं वहां जाऊंगी तो मुझे बहुत प्यार देंगे, और ये जानकर तो और प्यार करेंगे कि हमारा बेबी भी आने वाला है। वो खुद से सरगोशियां करती हुई बातें कर रही थी। अगर मैं वहां गई और वो मुझे ना मिले, कहीं काम से चले गए, तो फिर मैं क्या करूंगी? एक और अंदेशा पैदा हुआ। नहीं नहीं, मुझे मालूम है अल्लाह साईं मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मेरा शहजादा भी करता है। वो जरूर मुझे वहां मिलेंगे। सर नफी में हिलाते अपने ख्यालों से इनकार करती वो अपना लब दांतों तले दबाकर डुबडुबाई आंखों को हथेली की पुश्त से साफ करने लगी। डॉक्टर्स ने उन्हें मना किया था कि किसी भी बुरी खबर को समिया आलिम से दूर रखा जाए, और आरिब मुस्कान ने मजबूर होकर कहा था कि आलिम एक काम से गया है, वो बिल्कुल ठीक है, जल्द ही उनके बीच आएगा। सिमी खामोश तो हो गई थी, पर अपने भाई के कामयाबी की दुआएं जरूर मांग रही थी, और खुश भी थी कि उसका भाई सही सलामत वापस लौट आया था। उसे यकीन ना होता अगर अपनी शहजादी की खिलखिलाहटें घर में न सुनती। जब शहजादी यहाँ थी तो उसे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन था, उसका शहजादा भी जरूर है। उसने जब से होश में आकर आलिम की खैरियत की खबर सुनी थी, तब से अल्लाह के सामने शुक्राने के सजदे अदा कर रही थी, और अब फैसला पाया गया था कि आरिब यहीं रहेगा, नूरुल ऐन और परी के पास, जबकि बुरहान, समिया और हूर मुस्कान के साथ जाएंगे कराची। खाना खाकर जाते तो अच्छा होता मुस्कान, परी उन्हें जाते देखकर पास आकर बोली। नहीं फिर कभी स्वीट हार्ट, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। उसका गाल छू कर वो बोली। परी सर हिला गई। सिमी ने चोर नजरों से सामने खड़े खामोश आरिफ को देखा। वो उसे ही देख रहा था, और ये देखकर समिया घबरा कर नजरें फेर कर वहां से निकली। उसकी इस कदर बेरुखी पर आरिब जब्त से अपने लबों को आपस में भींचता उसकी पुश्त को देखने लगा। इंशाल्लाह शाम तक आलिफ आ जाएगा तो मैं भी आ जाऊंगा। ख्याल रखना दोनों का, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मिसी। आरिफ ने उसके सर पर हाथ रखते कहा, और मुस्कुराते सर सीने से लगाते खुद के अंदर सुकून उतारा। डोंट वरी, वो कहती उसके माथे पर बोसा देती मुड़ गई, जबकि आरिफ साकित सा रह गया उसके सालों बाद यूं माथा चूमने पर। ख्याल रखना अपना गुड़िया, बहुत सारा, भाई जल्द ही पहुंच जाएगा।
गहरा सांस खारिज करते उसने हुरुल ऐन को कहा। वो हंसकर सर हिला गई। बुरहान नूर के माथे पर बोसा देता उसकी बंद आंखें देखकर बाहर आ गया और उन्हें तैयार देखते आरिफ से मिलता, परी के सर पर हाथ रखता वहां से निकलते गाड़ी में बैठे। वो फ्रंट सीट पर बैठी, बुरहान ड्राइविंग पर, जबकि समिया पीछे अपनी शहजादी को अपनी ममता भरे हंसार में लेकर बैठी थी। हूर लबों पर मुस्कुराहट छुपाती हुई चेहरा समिया की गोद में छुपा गई कि वो अपने आलिम के पास जा रहे हैं। पता नहीं क्या कहेंगे मुझे। बोनी, वो उसके पास बैठा, उसकी गाल पर हाथ रखते उसे होशो हवास से बेगाना देखते हुए अजियत के आलम में बोला, पर वो कहाँ सुन रही थी। खामोश पड़ी मध्यम सांसें खींच रही थी ऑक्सीजन मास्क में। आलिफ की आंखों में नमी फैल गई। बोनी, अब उठ भी जाओ यार। वो उसके ड्रिप लगे हाथों को लबों से लगाते हुए बोला, पर जवाब नदारद। सर, नर्स ने उसे डिस्टर्ब करने से रोका। श्श, वो मुझे सुन रही है। आलिफ ने लबों पर उंगली रखते सुर्ख आंखों से कहा कि उसके सर्द अंदाज को देखते नर्स खामोश हो गई और दाद उसके बालों पर हाथ फेरता उससे सरगोशी में बातें करके बता रहा था कि क्या कुछ हो रहा है। कितना वक्त लगेगा इसे मुझसे बातें करने में? वो पीछे खड़ी नर्स से मुखातिब हुआ। सर, इनके हलक से लेकर अंदर तक इन्हें जलाया गया था बॉयल पानी से। इलाज काफी मुश्किल था, इनका फ्रैक्चर हुए हैं। 2 माह या सर 3 माह। वो नूर के नाजुक सरापे को देखती हुई बोली। आलिफ के कान साएं साएं करने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतने सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते, माह कैसे रहूंगा तुम्हारी इस जान लेती खामोशी के साथ नूर? प्लीज बेबी, डोंट ड्राइव मी क्रेजी, प्लीज माई इनोसेंट ब्यूटी। वो सरगोशी में बुड़बुड़ाता हुआ अपनी उंगलियों से उसके नकूश को छू रहा था। दाद, आपको बाहर आरिफ साहब बुला रहे हैं। मुलाजमा बगैर नॉक के अंदर दाखिल होती इंतहाई बेतकल्लुफ लहजे में बोली। आलिफ ने गहरा सांस भरते नजरें घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा और मुलाजमा उसकी सुर्ख काली आंखों के सर्दपन को देखती गड़बड़ा गई। सॉरी सर, उसने जल्दी से कहा और झपाक से वहां से भाग गई। अलबत्ता आलिफ के यूं गुस्से सर्द नजरों से देखने पर उसकी धड़कनें अलग ही लय पर धड़क रही थी। उठ जाओ जालिम, मुलाजमीन भी मुझ यतीम पर डोरे डाल रहे हैं। उन्हें कुछ कहती क्यों नहीं तुम? उसके गाल पर उंगलियां रखे वो बोला और फिर काफी देर तक तकते रहने के बाद मायूस होता वहां से निकला, जबकि नर्स उसकी शक्ल देख रही थी जिसकी उदास सूरत इस कदर हसीन थी। फिर वो हंसते हुए कैसा लगता होगा? वो सोचती, खुद सर झटक कर हंस पड़ी कि कहीं यतीम बच्चा ये ना समझ ले कि डोरे डाल रही है। तुम समझ रहे हो इजल? शहरयार के खामोश होने पर आलिफ ने पूछा। आरिफ ने हैरत से उन्हें देखा। समझ रहा हूं, सर हिलाते हुए गहरा सांस भरा। ये सब तो ठीक है, हमारी दुआएं हैं, पर रेस्टोरेंट का मुझे नहीं लगता कि हुरुल ऐन संभाल पाएगी। वो वैसे ही मिसी के साथ खुश है और मिसी उसे संभाल रही है। इंशाल्लाह तुम लोग फिक्र मत करो, ये मुश्किल वक्त भी कट जाएगा। वो इनकारी हुआ। अच्छा ठीक है, तुम दोनों को जो बेहतर लगे, पर हम अभी हुरुल ऐन की आंखों का इलाज नहीं करवा सकते, काफी रिस्की होगा। इंशाल्लाह बेबी की पैदाइश के बाद करवाएंगे। आलिफ की मजीद बात पर वो खामोशी से सर हिला गया। ऐसा हो सकता है अगर हम मुस्कान के साथ हुरुल ऐन को कहीं भेज दें, आई मीन किसी दूसरी कंट्री? शहरयार ने सोच कर कहा। वो दोनों चौंक गए। कहाँ? आरिफ ने सांस रोकते पूछा। किसी के लिए शौक, जैसे हमें शॉक्ड किया गया। कोई सजा, दाद ने कहा। आरिफ गुस्से से देखने लगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा आलिफ। मैं ये कतई नहीं चाहूंगा कि जिंदगी के किसी रास्ते पर भी वो एक पल के लिए भी आलिम को भूलकर दुनिया की रंगीनियों में खो जाए। वो भड़क कर बोला, पर मैं ऐसा चाहूंगा इजल कि मेरी कजन बहादुर बने, बेखौफ, किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने बलबूते पर जीने वाली। मैं हुरुल ऐन को बदल दूंगा बिल्कुल। अगर तुम मेरा साथ नहीं दे रहे तो तुम्हारी मर्जी, बट ये होकर रहेगा। जितना कड़वा सब्र हमें उससे लेना है, उतना उसे मजबूत बनाना पड़ेगा।
کہیں ایسا نہ ہو صبر کی سولی پر کترا کترا وہ زندگی ہار جائے اور پھر ایک بار آنکھیں بھیگی کیے ہم بیٹھے رہ جائیں۔ وہ سوچ چکا تھا اسے کیا کرنا ہے، اس لیے کافی غصیلے انداز میں کہتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اسے کہاں بھیجنا چاہتا ہے؟ ایزل نے ششتر ہو کر پوچھا۔ بھلا وہ کیسے سیمی سے اس کی شہزادی کو دور کرتا جو اس کا چہرہ دیکھتے ہی تو اپنے شہزادے کا انتظار کر رہی تھی؟ پتہ نہیں، یہ تو اس نے اچانک فیصلہ لیا ہے، ہمیں نہیں بتایا اس نے۔ شہریار نے لا علمی کا اظہار کیا۔ عارب ساکت سا رہ گیا اور کچھ کہے بغیر وہاں سے نکلتا کراچی کے لیے روانہ ہوا، بغیر ان کی سنے۔ کیا ہو رہا ہے میرا بچہ؟ وہ ٹرے کھانے کی لے کر اس کے پاس آ کر جھولے پر بیٹھی اور ٹرے سنبھال کر اپنی گود میں رکھی۔ کچھ نہیں، وہ کہتی ہلکا سا مسکرائی۔ کیا ابھی بھی نہیں آ رہا شہزادہ؟ اتنے دن گزر گئے ہیں، وہ کہاں ہے میسنی؟ ایک بار نہیں آیا مجھے دیکھنے، نہ ملنے، کوئی ایسے تو نہیں کرتا اپنی شہزادی کے ساتھ؟ وہ اداس کھوئی ہوئی بولی۔ مسکان نے گہرا سانس لیا۔ حوصلہ رکھو میری جان، جلد ہی وہ ہمارے پاس ہوگا۔ نوالا بنا کر اس کے منہ کی طرف کرتی وہ بولی۔ ہور نے نفی میں سر ہلاتے دکھ سے آنکھیں میچ لیں۔ کاش میں بہت حوصلے والی ہوتی، وہ سرگوشی میں کہتی نوالا منہ میں لے گئی۔ تم ہو میرا بچہ، تم ہو کافی حوصلے والی۔ عالم نے کہا ہے نا کہ وہ جلد تمہارے پاس آئیں گے۔ وہ تڑپ کر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو چننے لگی۔ ہاں، یہ کیسا شہزادہ ہے جو ایک بار بھی اپنی شہزادی سے نہیں ملتا، نہ اس سے باتیں کرتا ہے؟ بس کہہ دیا ہے عارف بھائی سے کہ وہ جلد لوٹے گا۔ کب لوٹے گا؟ جب میں پوری طرح تھک جاؤں گی، یا تب جب میں بکھر کر ختم ہو جاؤں گی؟ تم کہتی تھی وہ میرے اندھیرے کو محسوس کرتا تھا، مجھے اجالوں میں رکھتا تھا، میرا حکم شہزادی سمجھ کر پورا کرتا تھا۔ پھر کہاں گیا وہ میری زندگی کا مالک میسنی؟ کیا وہ مجھ سے بیزار ہو گیا ہے؟ اس نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ مسکان نے سختی سے آنکھیں میچ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ ایسا نہیں کہتے حور العین شہزادی، دیکھنا وہ تمہاری زندگی میں بہار بن کر لوٹے گا انشاءاللہ۔ اپنے رب پر یقین رکھو۔ پاگل کیوں بنتی ہو میرا بچہ؟ وہ اس کے پانی کا گھونٹ پلا کر دوسرا نوالا کھلانے لگی، جس پر اس نے نفی کی۔ ایسا نہ کرو عین، عالم ناراض ہوگا، اسے اپنا بچہ اور فتنہ دونوں کچھ باز چاہیے، اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ مجھے مارے گا۔ وہ منت کرنے لگی۔ مار دے، مجھے نہیں پتا، مجھے عالم واپس لا دے، اس نے سسکی بھرتے ہوئے ضدی لہجے میں کہا۔ اچھا تم نہ کھاؤ، بیبی کو کھلاؤ، اسے بھوک لگی ہے، وہ اس کے گال پر کس کرتی بولی۔ ہور نے پھر سے نفی کی۔ نہیں، بیبی کو بھی بابا چاہیے، وہ مجھ سے کہہ رہا ہے اسے بابا چاہیے۔ ہمیں عالم چاہیے، بلا دیں انہیں۔ تم نے کہا تھا گھر چل کر ملے گا، آج تیسرا دن ہے وہ نہیں آ رہے۔ مسکان اس کی سوجی آنکھیں دیکھتی رہ گئی۔ تمہیں معلوم ہے وہ تمہیں تنگ کر رہا ہے میرا بچہ، وہ دیکھنا چاہتا ہے اس کی عین کتنی بہادر ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگی۔ اچھا؟ وہ حیران ہوتی پل میں آنکھیں پھیلا کر مسکان کی جانب ہوئی۔ ہاں، اور تم رو کر ثابت کر رہی ہو کہ تم بہادر نہیں ہو، اس سے تو وہ اور بھی دن لگائیں گے آنے میں۔ تم صبر کرو، ہمت کرو، خوش رہو، اس کے بارے میں سوچو بہت اچھا اچھا، پھر جب آئیں تو انہیں بتاؤ، ٹھیک ہے میرا بچہ؟ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر بولی۔ حور کی آنکھوں میں جگنو چمک اٹھے۔ ہاں، اور جب وہ آئیں گے تو میں خوب سارا ناراض بھی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ وہ پرجوش ہو کر بولی۔ ہاں ضرور، اور اس ناراضگی کا طریقہ میں تمہیں سکھاؤں گی۔ وہ اس کے پھولے گال پر بائٹ لیتی ہوئی بولی۔ گویا حور العین کھلکھلاتی ہوئی جھیپ گئی۔ شکر ایک تو آزادی ہے کہ تمہیں جس طرح چاہے میں کھا سکتی ہوں، وہ ہنستی ہوئی بولی۔ حور نے منہ بنا لیا۔ اور جب وہ آئیں گے تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ کیسے تم مجھے کاٹتی تھی اور پپیاں دیتی تھی۔ سرخ زبان چڑھاتی ہوئی وہ بولی۔ مسکان ہنس پڑی۔ تمہیں معلوم ہے اس کا سکھایا کوئی دوسرا ہنر نہیں، بٹ بھاگنے والی کوالٹی مجھ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اس نے جتایا، اور حور منہ بنا گئی۔ السلام علیکم۔ وہ ابھی ہنسی مذاق میں کھانا کھا ہی رہی تھیں جھولتے ہوئے، تبھی وہاں یونیفارم میں برہان آیا۔ وعلیکم السلام۔
مسکان نے اسے دیکھتے منہ بنایا جبکہ حور العین نے خوش دلی سے سلام کا جواب دیا۔ کیسی طبیعت ہے حوری؟ وہ اسے پیار سے ہمیشہ حوری کہتا تھا یا کبھی حوریا۔ نظریں اس کے مسکراتے چہرے پر ڈال کر وہ مسکان کو دیکھنے لگا جو بنتے بیزار تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے بگڑے نقوش کو دیکھتا ابرو اچکا گیا۔ مسکان نے نظریں چرائیں۔ اچھا میں آتی ہوں۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر جانے لگی کہ مسکان کو برہان پر غصہ آیا، جس پر وہ بھی ٹرے سنبھال کر اٹھی۔ میں تمہیں چھوڑ کر آتی ہوں۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ تم برہان کو کمپنی دو، میرا کزن ایسے نہیں جانا چاہیے۔ وہ شرارت کرتی ہوئی اندر بڑھ گئی جبکہ مسکان پھیلی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے جانے ہی لگی تھی جب برہان نے اس کی کلائی جکڑ لی۔ میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ اتنی بے رکی کیوں؟ وہ جھٹکے سے کھینچ کر اسے اپنے برابر کرتا ہوا بولا۔ مسکان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پھر تو تم کافی غلط وقت پر آئے ہو۔ غلط وقت پر نہیں آیا، مجھے معلوم ہے۔ تمہارا دیدار ہی میرے نصیب میں خطرناک لکھا ہے۔ میں پھر بھی وہ خطرہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، ہر وقت، ہر سیکنڈ۔ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھے کلائی چھوڑ کر بازو اس کی کمر میں ڈالے قریب کھسکاتا ہوا بولا۔ میں پھر بھی کہوں گی غلط۔ وہ سختی سے بولی۔ تم کہہ سکتی ہو۔ میں صرف اپنی محبت کا اظہار کرنے آیا ہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، اتنی کہ اب تم مجھے ایک پنچ مارو گی تو میں بدلے میں تمہیں 5 ماروں گا، اور اگر تم مجھے 5 مارو گی تو میں تمہیں 10 ماروں گا، تو میں تمہاری ٹانگ توڑ دوں گا، اور اگر میں نے تمہاری آنکھیں پھوڑ کر تمہیں لنگڑا کر کے بیڈ پر بٹھا دیا تو؟ وہ اس کے گریبان کو مٹھیوں میں پکڑے غصے سے بولی۔ برہان دوسرا بازو بھی اس کی کمر میں ڈالے اسے سینے سے لگاتا آس پاس کسی کو نہ پا کر سوچنے لگا، تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، اس نے مسکراتی آنکھوں سے کہا۔ مسکان حیران ہوئی، اسے اچانک ہو کیا گیا تھا؟ وہ خڑوس سا بندہ اسے کہہ رہا تھا اسے محبت ہے اس سے، اور محبت کیسی تھی کہ وہ اس کی مار پر ڈبل ہو کر مارے گا۔ توڑو میرا منہ، وہ گرائی اور غصے سے جھٹکتے اس کے کالر کو کھینچا۔ برہان مسکراہٹ دبا کر کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا تو کبھی ہونٹ، کبھی سرخ ناک کو۔ اگر میں نے توڑ دیا تو تمہیں شکایات تو نہیں ہوں گی نا؟ وہ اس کی پیٹھ پر انگلیوں سے کچھ لکھ رہا تھا۔ مسکان کی ساری توجہ اس طرف چلی گئی تھی کہ وہ اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکی۔ کیا میں محبت میں تمہارا منہ توڑ سکتا ہوں بیگم؟ وہ سمجھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو اجازت مانگ رہا تھا۔ اس کا دل کیا اس کا بھی منہ توڑ دے۔ ہاں، وہ ابھی کچھ سخت سنانے ہی والی تھی کہ اس کے ہاں پر ہی وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے اچانک ہی اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کے یوں اس انداز کو دیکھتے اس کا دماغ سن ہو گیا۔ ہمارا منہ توڑنے کا انداز کچھ مختلف ہے مسی میڈم، خیر مناؤ اپنی، جلد ہی آؤں گا اور پھر اس سب کا بھی بدلہ لوں گا۔ تب تک میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ اس کے چہرے پر اپنی نرم گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے وہ اپنا انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیر کر دور ہوتا ہوا بولا۔ وہ کیا سمجھتی؟ ساکت کانچ کا بت بنی کھڑی تھی جب وہ ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پر ڈال کر ایک دم آگے بڑھا اور ہاتھوں کے پیالے میں چہرے کو بڑھ کر ماتھے پر شدت سے بوسہ دیا، اور اس کی آنکھیں ناک گال چومتے ہوئے ایک ہاتھ اپنی جیب میں ڈال کر وہاں سے کچھ نکالتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں تھمایا اور مڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ مسکان سانسیں روکے کھڑی تھی۔ مما، فیری نے اندر آتے سامنے سے ہی اپنی ماں کو دیکھتے چیخ ماری، اور اس تڑپ بھری پکار پر مسکان نے ہوش آتے اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں سرخ گلاب اس کی ہتھیلی پر رکھا تھا اور ساتھ کانٹے بھی تھے۔ اس نے لب بھینچتے اپنی مٹھی ان کانٹوں پر مضبوطی سے بھینچ دی۔ تمہارے پاپا کہاں جا رہے ہیں؟ وہ گھٹنوں کے بل گرنے کے انداز میں فیری کے سامنے بیٹھتی ہوئی بولی۔ مما، وہ پاپا کا ٹرانسفر کے آرڈر آئے ہیں، وہ چلے گئے، پر انہوں نے کہا ہے وہ جلد ہی لوٹیں گے، اور پھر ایک خوشحال فیملی کی ہم شروعات کریں گے۔ فیری آنکھیں پوچھے مسکان کو دیکھنے لگی۔ تو سب کا جانا ضروری تھا، سب کا اکیلا کرنا ضروری تھا،
پھر وفا کی امید صرف ہم سے کیوں رکھی جاتی ہے؟ وہ اپنے چہرے پر اس کے لمس کو محسوس کرتی حلق میں گھلتی نمی کو نگلنے لگی۔ اگر ہم بے وفائی پر آئے تو ڈھونڈتے رہ جاؤ گے سب۔ وہ تلخ ہو کر سوچتی فیری کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا گئی اور خون آلود ہتھیلی پر رکھے اس گلاب کو دیکھنے لگی۔